Hello dear students, how are you? Today I will discuss some problems which may and often asked in various competitive exam. The first problem is a positive charge particle Q and M. Here Q is the charge and M is mass of the charge particle. Enters in a uniform magnetic field B at a point E with speed V and come out from the point F shown in the figure. I will draw the figure later. Find the intercept of EF, arc length, how long does the particle stay inside the magnetic field, and if the directions of the magnetic field is changed, it means its directions upward or downward. Then find 1, 2 and 3, the same intercept, arc length and time. We know that magnetic field F, magnetic force F equal to Q V क्रॉस B. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये फोर्स कभी एक्सेलरेशन नहीं देता है. और क्या बताया मैंने जी, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कभी एक्सेलरेशन नहीं देता. क्या करता है, ये ऑलवेज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कराता है. ऑलवेज here acceleration equal to 0. That means if the particles enters with speed v, then it come out from the magnetic field from a point with same speed, or it rotate with same speed. Here various cases will arise. I will discussing. If the magnetic field in this region and charge particles enters at point E with angle alpha and come out from F this alpha is always greater than or less than 90 degree, less than 90 degree. ये एंगल किसके साथ है, अल्फा एंगल्स किसके साथ किया, बाउंड्री वॉल. मैग्नेटिक फील्ड का जो बाउंड्री वॉल है इस यहाँ बाउंड्री वॉल है. In this case the center of the circle outside the magnetic field. If the charge particles enters with angle alpha with the boundary wall and then alpha is less than 90 degree, then always center will be outside of the magnetic field. The first case, if the boundary walls, if it is the boundary wall, then what will be the angle? That is 90 degree, and it will comes out from the magnetic field at same angle 90 degree. It's the second case, E point and F point. Here the center lie on the boundary wall. The third case, if the boundary wall here, then the angle, what will be the angle? Alpha greater than 90, and it will come out from the point F, enters E with speed v. So you have three cases. It depends on alpha, and here I write the alpha with the boundary wall, also boundary wall with here alpha less than 90, equal to 90, greater than 90.
ये प्रॉब्लम आप लोगों को करना होगा, मैं नहीं करूँगा। देखिए मैं फर्स्ट केस को डिस्कस करता हूँ, क्या है ये। केस 1, मान लीजिए इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, डाउनवर्ड, इट मस्ट बी द डाउनवर्ड, perpendicular and downward. If a charge particles enters at angle alpha with speed v, then first we have to see the force, direction of the force. If you know the Fleming left hand rules, if it is the direction of the magnetic field and motion of the charge particle, then it will be the direction of the force. The downward, magnetic field is downward, the board, charge particle enters in magnetic field with speed v, then the force will apply in this direction. That means charge particle diverted a circular path, such type of the circular path. The center will be outside of the magnetic field, O. This angle is alpha and enters at the point E and comes out from the point F. ये लाइन मैंने लंबा खींच लिया, ये एंगल को दिखाने के लिए मैंने किया, ये नहीं होगा। कनेक्ट OF, तो इन दिस केस क्या होगा, OEF इक्वल टू OE इक्वल टू द रेडियस, तो इस टाइप का प्रॉब्लम में सिर्फ मुझे एंगल निकालना है और कुछ नहीं। वी नो दैट इफ ए चार्ज पार्टिकल्स एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फोर्स QVB, it will be equal to the mv square by r, centripetal force. From here you can write r equal to mv by qb and time 2 pi r by speed v, that equal to 2 pi t equal to 2 pi m by qb. If a charge particles enters in a magnetic field perpendicular to the magnetic field, always V perpendicular to the B. It may be some different angle, but not parallel or anti-parallel. In this case, the radius means the in which circular path the charge particle flow, the radius will be r equal to mv by qb, and the time period means
टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन इज टी इज इक्वल टू 2 पाई m/qd। ये हम लोग जानते हैं। तो मुझे हमेशा ये जो ड्रॉ किया मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया सर्कुलर पाथ को दिखाने के लिए। अगर ये अल्फा है तो ये मैंने क्या कि टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा, ये टोटल कितना होगा 90 डिग्री। दैट मीन्स π/2 माइनस अल्फा। इफ दिस एंगल इज π/2 माइनस अल्फा देन दिस एंगल ऑल्सो भी π/2 माइनस अल्फा। ये अल्फा को हमेशा रेडियन में लेना पड़ेगा। अगर डिग्री में पुट कर देंगे तो रिजल्ट विल बी रॉन्ग। वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर इट इन द रेडियन फॉर्म। If it is π/2 minus alpha, it is π/2, then it is alpha. If it is alpha, then it must be alpha. That means total angle 2 alpha. If it is 2 alpha, then it will be π/2 minus alpha, and also this angle will be alpha. So जिस एंगल से ये इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बट मैग्नेटिक फील्ड के वॉल के साथ, उसी एंगल से वो निकलेगा, ये कोई दूसरा नहीं होगा। इस केस में अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो करके फिर इस साइड में निकल के आएगा, सेम साइड में। तो मेरा ये एंगल निकल गया। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट EF। If the point is G, if it is total angle 2 alpha, then it is alpha, it will also be alpha. And from the triangle OFG, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये हाइट है, ये बेस है, और ये क्या हाइपोटेनस है। तो क्या लिख सकते हैं हम, FG by OE। OE मीन्स रेडियस। क्या था, OF इक्वल टू OE इक्वल टू R, रेडियस। क्या हुआ, FG ये कितना हुआ, हाइट, और ये हाइपोटेनस मीन्स साइन अल्फा is equal to OF sin alpha, that's equal to R sin alpha. Here the value, what is the value of the R? MB by QB. Here EF equal to OG EG plus GF, that's equal to 2 of FG, that's equal to 2R sin alpha. तो ये कितना हुआ, ये इक्वल टू 2R sin alpha। क्या निकाला यहाँ से, इंटरसेप्ट EF इक्वल टू 2R sin alpha। नेक्स्ट क्या था, आर्क लेंथ कितना है। आर्क लेंथ मीन्स दिस पाथ। हम क्या जानते हैं, आर्क लेंथ S इक्वल टू R थीटा। आप लोगों को याद होगा S इक्वल टू R थीटा याद होगा। दैट इज आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। थीटा मीन्स क्या, इस सेंटर में कितना एंगल किया, सेंटर में कितना एंगल हुआ है
टू अल्फा, या आर्क सेंटर में कितना गया, टू अल्फा. द आर्क मेक्स एन एंगल एट सेंटर इज टू अल्फा, दैट मीन्स आर टू अल्फा, दैट्स इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी टू अल्फा. ये चीज़ हमें मुझे पता है, सिर्फ टू अल्फा निकलना है, एंगल निकालना है मुझे. तो क्या नंबर 2 आर इंटू टू अल्फा. थर्ड पॉइंट क्या था, कितना टाइम स्पेंड करेगा ये ना, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल स्टे इन दिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन. द पार्टिकल्स मूव्स इन सर्कुलर पाथ and this is the arc of the circular path. Total time t equal to 2 pi mv by q. That means that if the particles rotate into a circular path, one rotation, the time will be t. At third point we can say time equal to total distance, travel distance, total path by velocity. टोटल पाथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक इतना ही तो ट्रैवल किया मैग्नेटिक फील्ड में. सो यहाँ से यहाँ तक मतलब आर्क लेंथ, दैट मीन्स आर्क बाय वेलोसिटी v. आर्क लेंथ कितना है, आर टू अल्फा, मतलब एम वी बाई क्यू बी इंटू टू अल्फा, और वेलोसिटी कितना होगा v, और टाइम इक्वल टू m बाई क्यू बी इंटू टू अल्फा. ठीक है. The problem is at the 10th standard. Only I have to find out the alpha. Means what angles makes at center the arc. And what is the fourth case? If the direction of the magnetic field is changed, it means here the magnetic field was perpendicular on the board inward, मतलब बोर्ड के पीछे तरह. अगर ये अपवर्ड हो जाएगा देन व्हाट विल बी द 1 2 3. इन 3 केस क्या था, P इक्वल टू एम वी एम बाई क्यू बी इंटू टू अल्फा. इसको हम ये टी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया m बाई क्यू बी इंटू टू अल्फा बाई 2 पाई. That means t by 2 pi into 2 alpha. That means t by pi into alpha. If the direction of the magnetic field is changed, then it will be turned into the case 3. See the first video, case 3. केस 3 को रहने दो. यहाँ पे एंगल क्या था, ये एंगल दिया था अल्फा. अगर ये अल्फा यहाँ से नहीं दिया हुआ था, अगर ये एंगल अल्फा होता तो क्या होता, ये एंगल अल्फा है तो क्या होता. देखिए कुछ नहीं करना है, अगर ये अल्फा है तो ये कितना है पाई बाई 2 माइनस अल्फा. वहाँ जितना इक्वेशन है अल्फा अल्फा की जगह पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख दो, सेम चीज़ हो जाएगा. यहाँ सेंटर में कितना एंगल था 2 अल्फा, तो 2 इंटू
पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दैट्स मीन्स पाई माइनस 2 अल्फा। ये सेंटर में होना चाहिए। देखते हैं, अगर ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर टोटल 90 डिग्री है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा। अगर ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो इफ दिस एंगल इज अल्फा देन इट विल बी पाई बाई 2 माइनस अल्फा, because this angle is 90 degree. If it is pi by 2 minus alpha, then it will be also pi by 2 minus alpha, and that will be also alpha, and here that will be also alpha. तो सेंटर में कितना एंगल हुआ, ये पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, इस टोटल कितना हुआ, पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो पाई माइनस 2 अल्फा, पाई माइनस 2 अल्फा। तो नंबर 1 क्या था, इंटरसेप्ट ई एफ। ई एफ क्या 2 आर साइन अल्फा, यहाँ क्या करूँगा, अल्फा की जगह पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा पुट कर दूँ, 2 आर साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दैट्स इक्वल टू 2 आर cos alpha। Previous case, this angle was alpha, then it will be height and that will be hypotenuse. If that angle is alpha, then it will be base. So base by hypotenuse equal to cos theta. So again we write the EF equal to 2r cos alpha. Case 2, arc length. Arc length r into 2 alpha और mb by qb 2 अल्फा, ये था मेरा, यह पुट कर देते हैं, या डायरेक्टली हम पाई माइनस 2 अल्फा पुट कर दो, पाई माइनस 2 अल्फा हो गया। यहाँ एंगल कित वहाँ अल्फा 2 अल्फा था, यहाँ पाई माइनस 2 अल्फा है, 2 अल्फा कर दिया। फिर यहाँ क्या है, टाइम t इक्वल टू, केस थर्ड में t इक्वल टू एम बी एम बाई क्यू बी पाई माइनस 2 अल्फा, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया और कुछ नहीं। सो आपको देखना पड़ेगा एंगल किस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। एंगल बाउंड्री वॉल के रेस्पेक्ट में दिया हुआ तो ये होगा, और बाउंड्री वॉल के नहीं दिया होगा, पैरेलल दिया होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड, देन दैट विल बी द केस। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये एंगल और ये एंगल निकालना है, सब कुछ निकल जाएगा। अब केस 3 में आते हैं। ये जो केस था, जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, फोर्थ पॉइंट में जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, डायरेक्शन इज चेंज, दैट मीन्स upward to the board. अब क्या होगा, मान लीजिए यहां से एंटर किया पार्टिकल, देखिए फर्स्ट केस क्या था, थोड़ा सा छोटा करके ड्राइंग करते हैं। यहाँ से एंटर किया, यहाँ से निकल गया, यहाँ हो गया क्या, सेंटर। उस टाइम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड टू द बोर्ड और मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन एट द पॉइंट एफ।
इस टाइम क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो गया, मीन्स ये अपवर्ड हो गया। अपवर्ड हो गया तो डायरेक्शन कैसे होगा, फोर्स डायरेक्शन इधर होगा, तो ये पिक्चर इधर नहीं होगा, इस साइड में होगा। अगर इस साइड होगा तो कैसे होगा, मीन्स in previous case the path was this type and now the case this path is this type, and previous case the center of the circle was outside the magnetic field and here the inside of the magnetic field, and here the angle with the boundary wall is greater than 90 degree. ये एंगल की greater than 90 डिग्री। तो मैंने अभी इस टाइम इसके पहले जो प्रॉब्लम था वो अल्फ़ा इसी का रेस्पेक्ट में दिया हुआ था। तो चलिए देखते हैं, ये पॉइंट ई है, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से निकला, तो ये पॉइंट जोड़ दिया मैंने ये वेव को ओ के साथ, तो क्या हुआ, ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू रेडियस आर। तो मुझे क्या, ये आर कितना एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ये एंगल को निकालना पड़ेगा। ये एंगल निकल लेगा तो you can easily write this angle. So try to find out this angle. If it is alpha, what is the total angle? 90 degree. And if this angle is alpha, then it will be pi by 2 minus alpha. If it is pi by 2 minus alpha, then it is pi by 2, then it will be alpha. If it is alpha, then it also be alpha, and it will be pi by 2 minus alpha. So in this case, this angle is 2 alpha. If this angle is 2 alpha, then what will be that angle? 2 pi minus 2 alpha. Then what is the arc length? First point. EF, what will be the intercept EF? ये एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो ये हाइट हो गया, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्स। दैट्स मीन्स EF इक्वल टू अगेन 2r sin alpha. If you consider triangle GOE, then you can write EG by EO, that's equal to sin alpha, because this angle is alpha and it is height and it will be hypotenuse. Number 2 point, arc length. ये आर्क लेंथ कितना होगा, वही आर थीटा, आर इंटू थीटा, दैट्स मीन्स आर इंटू 2 पाई माइनस 2 अल्फा, दैट्स इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी 2 पाई माइनस 2 अल्फा. What was the time? टाइम सर इसको v से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा. टाइम कितना होगा, m बाई क्यू वी 2 पाई माइनस 2 अल्फा. अगर ये एंगल थोड़ा चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये एंगल अगर ये दे दिया अल्फा, तो क्या होगा, अगेन वी हैव टू फाइंड दैट सेम एंगल.
If it is alpha, that means pi by 2 minus alpha. That means this angle alpha. If it is angle alpha, then it will be alpha. Both are radius same. And this angle will be pi minus 2 alpha. And what will be the angle? 2 pi minus pi minus alpha. That means pi plus 2 alpha. तो एंगल कितना हुआ? पाई प्लस 2 अल्फा. सिर्फ एंगल चेंज हो गया तो प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा. तो अब ध्यान से ये एंगल को देखना. तो अगेन इंटरसेप्ट ई एफ कितना होगा? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा? कॉस अल्फा. क्योंकि उस टाइम ये हाइट था, अब ये बेस हो गया. आर्क लेंथ कितना होगा? r into pi plus 2 alpha. That means mv by qb pi plus 2 alpha. थर्ड पॉइंट, what will be the time? इसको v से डिवाइड कर देते हैं. चलिए m by qb pi plus 2 alpha. ये अगर आप इस t का रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया m बाई क्यू वी पाई प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा. दैट्स मीन t इंटू पाई प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2 पाई बाई 2 पाई. एक चीज़ ध्यान में रखना जी, ये अल्फ़ा जो एंगल है ये ऑलवेज रेडियन में है. द अल्फ़ा एंगल मस्ट बी पुट ऑलवेज इन रेडियन फॉर्म. इफ इट इज़ गिवन 30 डिग्री दैट विल बी पाई बाई 6. I have to put pi by 6, not 30 degree. If 60 degree, then I have to put pi by 3. Now we discuss the case 2. Here alpha equal to 90 degree. If a charged particle enters in a magnetic field with the boundary wall at angle 90 degree, then it will be returned. And the center will be on the boundary wall. If enters E, F, the arc makes an angle at the center is pi. Then what will be the intercept EF? ये सिंपली आर, ये भी आर, तो 2r होगा. और आप वहाँ पुट कर सकते हैं क्या है 2r साइन अल्फा. यार अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स 2r. नंबर 2 आर्क लेंथ. ये एक सर्कल का हाफ है तो कितना होगा पाई आर. और लिख सकता है आर थीटा. दैट्स मीन आर इंटू पाई दैट्स इक्वल टू पाई आर. आर्क लेंथ इक्वल टू पाई आर. दैट्स मीन पाई एम बी बाई क्यू बी. एंड टाइम या टोटल हाफ पाथ ऑफ द टोटल दैट विल बी टाइम क्या है. दैट्स मीन पाई एम बी बाई एम बाई क्यू बी. So we have just find out only the angle pi. Means the what angles makes at the center the arc. And keep in mind the which angle is given and whose respect. तो किसका रेस्पेक्ट पे वो एंगल दिया हुआ ये आपको ध्यान में रखना होगा. अगर बाउंड्री वॉल के रेस्पेक्ट में दिया होगा, अगर वो 90 डिग्री से कम है, अगर इसका रेस्पेक्ट में दिया हुआ और 90 डिग्री से कम है तो सेंटर क्या कहाँ होगा? बाहर होगा मैग्नेटिक फील्ड के. अगर ये घटा दे 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? अंदर होगा. अगर इस प्रॉब्लम में
आपको ये एंगल इसका रेस्पेक्ट में दे दिया तो आप इसका रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, आप देख लेना ये 90 डिग्री से ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है तो ये अंदर चला जाएगा और कम है तो बाहर आ जाएगा सेंटर। इसका ये एंगल एंटर किया, आपको ये दिया हुआ 30 डिग्री, दैट्स मीन विथ द बाउंड्री वॉल दैट विल बी 90 डिग्री 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री सेंटर। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा सिर्फ पिक्चर को।